اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، اس کی ذرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن جس انداز سے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا تھا اس سے پتہ چلتا کہ وہ شہسوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اسے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ مکرمہ نظر آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ اسے جیسے آواز سنائی تھی، ابو سلیمان اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، نبی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہے تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد بن ولید کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کے قائد بن چکے تھے۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتے جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتے تو ان کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن ان کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 نام اٹک گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے نئے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشک پر اپنے آپ ہی رخ بدل دیا تھا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کودا، امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دوزانو ہو گئے، پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ کر گئے۔ ان کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد بن ولید نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک ڈوری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گئے۔ وہ تھک گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتے تھے، مگر ان کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ انہیں سونے نہیں دیتا۔ انہیں 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب ان کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔
कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसान के रूप में वैशी और दरिंदे थे। खालिद बिन वलीद कुरैश के सरकर्दा खानदान के जवान थे। उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में शरीक थे, लेकिन वो कत्ल के लिए जाने वालों के गिरोह में शामिल नहीं थे। उन्हें 7 साल पहले की तरह गुजरे हुए कल की तरह याद था। वो इस कत्ल पर खुश भी थे और नाखुश भी। खुश इसलिए कि उनके अपने कबीले के ही एक आदमी ने उनके मजहब को, जो खुद परस्ती थी, बातिल कह दिया था और अपने आप को खुदा का पैगंबर कहा था। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फिक्र बात थी, और वो नाखुश इसलिए थे कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने के कायल थे। उन्होंने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची नहीं थी। बहरहाल उन्होंने उस साजिश की मुखालिफत न की, लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा को मुकर्रा वक्त पर कत्ल करने गए तो आप अलैहिस्सलाम का मकान खाली था। वहाँ घर का सामान भी नहीं था, न आप अलैहिस्सलाम का घोड़ा था न ऊँटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मजहब को झुटलाने और उन्हें अपने नए मजहब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर यसरब को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप अलैहिस्सलाम बहुत दूर निकल गए। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थी। जहन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा निकला। 613 ईस्वी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमानों से कहा, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें एक ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आकिबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नुज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीजों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद बिन वलीद उस महफिल में नहीं थे, उनके बाप मदऊ थे। उसने खालिद बिन वलीद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी। हम जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का खानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबुव्वत का दावा उस खानदान का कोई फर्द क्यों करे? अल्लाह की कसम और हुबुल और उज़ा की, मेरे खानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबुव्वत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? खालिद बिन वलीद ने पूछा, आपने उन्हें क्या कहा? बाप अल वलीद ने कहा, पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम हंस पड़े, लेकिन मोहम्मद के चचाजाद भाई अली ने मोहम्मद की नबुव्वत को कबूल कर लिया। खालिद बिन वलीद अपने बाप की तंजिया हंसी को भूले नहीं थे। उन्हें 629 ईस्वी के एक रोज मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलिस्तान में लेटे हुए वो वक्त याद आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नबुव्वत को कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, उस नबुव्वत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज मुफलिस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जाना गई और आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग तेज कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान उन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबा के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तुलुए इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूछते इन बुतों को थे। उन्हें वो देवियां और देवता कहते और उन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद बिन वलीद को याद आ रहा था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत उन्हें न फायदा दे सकते हैं न नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल वलीद था, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबू हकम था जो खालिद बिन वलीद का चचाजाद भाई था।
मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म व तशद्दुद उसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कुश था, इसीलिए मुसलमान उसे अबू जहल कहने लगे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे उसका असल नाम भूल ही गए। तारीख ने भी उस पस्ता कद, महंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद बिन वलीद को ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गिलाज़त फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता, वहाँ कुरैश के आदमी जा पहुँचते और हुल्लड़ मचाते थे। बदअखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद बिन वलीद को ये इत्मीनान जरूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे को बुतों की तौहीन और नबूवत के दावे से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाए। अबू तालिब ने उन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो खास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और उसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाएं और इससे कहें कि मेरा बेटा रख लें और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें दे दें। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा और जब उसका भाई अम्मारा 2 सरदारों के साथ चला गया था तो खालिद तन्हाई में जाकर सरदारों ने अम्मारा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा था, अबू तालिब इसे तुम जानते हो, ये अम्मारा बिन अल वलीद, तुम ये भी जानते हो कि बनु हाशिम ने जिसके तुम सरदार हो अभी तक इस जैसा सजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो ये तमाम उम्र फर्मा बरदार रहेगा और अगर इसे अपना गुलाम बना लोगे तो कसम है अल्लाह की, तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अबू तालिब ने पूछा, मतलब तुम इसे पालो क्यों रहे? क्या बनु मखजूम की माओं ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया? कहो इसकी कितनी कीमत चाहते हो? कुरैश के एक सरदार ने कहा, इसके एवज हमें अपना भतीजा तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रुसवाई का बारिश बन गया। उसने तुम्हारे आबा व अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना दिया। तो तुम नहीं देख रहे कि उसने कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया? अबू तालिब ने पूछा, तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। अबू तालिब ने कहा, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा और इस पर खर्च करूंगा और इसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद बिन वलीद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने ये सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद बिन वलीद को दिली मसरत हुई। खालिद बिन वलीद की जात से एक सवाल उठा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया अबू सुलैमान? उन्होंने ख्यालों में सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रिकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं। रिकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जिसने इस्लाम कबूल न किया था। वो अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी गिरामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रिकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है, न किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? रिकाना ने अपने चेहरे पर मस्त भैंसे का तासुर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? लाओ उसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात न मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही न था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिकाना के हाथों गिराकर आप अलैहिस्सलाम का तमाशा बनाया जाए।
मक्का के यहूदी खास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रिकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक रोज रिकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रिकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रिकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। उसने पूछा, क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो उसका मतलब क्या होता है? कौन हो तुम? उस जवान लड़की ने जवाब दिया, इसका मतलब ये होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। मैं सब्त बिन्ते अरमन हूँ। रिकाना ने कहा, ओ अरमन यहूदी की बेटी, और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत? सब्त ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है। तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? रिकाना ने गरज कर पूछा, कौन कहता है? सब्त ने कहा, सब कहते हैं। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। रिकाना ने कहा, अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मौर्रिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रिकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौर्रिख इब्न अल-असीर ने जो शहादत पेश की है वो ये है कि रिकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा था, मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा।